Good morning, students. Welcome back to the Saviors Academy channel, Education for the World of Difference. I hope आप सभी बिल्कुल सही हैं और हम प्रार्थना करेंगे कि हम सभी के लिए ये सब बिल्कुल सही रहें. क्लास शुरू करने से पहले I would just like to inform you, कुर्सियों की पेटियां बांध लें और I'm watching you. Please हिलिएगा मत. So let's begin today's class and your class. So let's begin with today's chapter number 2. And today we are going to study about the chapter number 2. We are going to read the story of the Merchant of Venice. Last time we read the poem, that was the Arrow and the Song. That was the chapter number 1.2, or the part of chapter 1. So let us understand and let us dive into the book. आज हम देखेंगे Merchant of Venice story के बारे में. So before every story, we always have a warm-up exercise. Let us see what warm-up exercise we are having over here. We like our friends because we share common interests. Think about your best friend and make a list of 3 things you like and 3 things you would want him or her to change. So today, my friends, you have to think about your classmates, your best friends. आपको अपने best friend के बारे में सोचना होगा और अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचकर उन सारी चीज़ों के बारे में जो आपको उनमें अच्छी लगती है, you have to make a list of those things. So you have to make a list of 3 things you like and 3 things you would want him or her to change. और 3 ऐसी चीज़ों के बारे में भी लिखना है जो आप चाहते हो कि वो चेंज करे. So you have to think about your best friend. So this would be your self work also, that you have to write about your friend. Write it in your diary, write it in somewhere, or just remember it, memorize it. Think. आप एक बार सोचो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, किसके साथ आप सबसे ज़्यादा खेलते हो, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, और जल्दी से सोचो 3 चीज़ों के बारे में जो उसमें आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी लगती हो उसके बारे में, और 3 ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हो that you want him or her to change. So this is a very interesting activity, I guess. Now let's move to the chapter. Let's read the story. Shylock, a wealthy usurer, lived in Venice. What is a usurer? It's a moneylender, a person. The definition of usurer would be a person who lends money at unreasonably high rate of interest. ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा उधार देता हो. तो यहाँ पर यहाँ एक एडजेक्टिव भी दिया हुआ है. How the usurer was a wealthy usurer lived in Venice. So Shylock, a wealthy usurer, एक बहुत ही अमीर, wealthy, rich, okay, बहुत ही rich usurer lived in Venice. कहाँ रहता था? Venice में. So Venice is a city in northeastern Italy and the capital of Veneto region. Okay, this is a city in Italy. He used to lend money at very high rates of interest to local merchants. वो उसका एक काम था, मतलब he used, उसकी आदत थी, मतलब वो करता था, उसका रोज़ाना का था कि he was used to lend money, वो उधार देता था पैसे बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. किसको? लोकल मर्चेंट्स को. मर्चेंट्स यानी व्यापारी. तो वहाँ के जो लोकल व्यापारी होते थे, he used to lend money to them. He was a hard-hearted man and was disliked by all good men, particularly by Antonio, a young merchant of Venice. Shylock, too, hated Antonio because the latter used to lend money to people when they were in trouble and would never take any interest for the money he lent. अब यहाँ हमने क्या देखा कि एक एंटोनियो व्यक्ति है जो कि अच्छा है, ठीक है ना, गुड मैन, पर्टिकुलरली बाय एंटोनियो. और हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि ही वॉज अ हार्ड हार्टेड मैन. कौन? शाइलॉक. हार्ड हार्टेड मतलब जिसको पिटी नहीं आती हो, जिसको दया नहीं आती हो दूसरे लोगों पे, जो बिल्कुल निर्दय हो, बेरहम हो,
ठीक है ना. एंड ही वॉज डिसलाइक बाय ऑल गुडमैन, पर्टिकुलरली बाय एंटोनियो. तो हमने देखा यहाँ पर एंटोनियो जो है वो एक अच्छा आदमी है. गुडमैन मतलब उस गुडमैन की एक लिस्ट में आता है. अ यंग मर्चेंट. अब ये एंटोनियो है कौन? अ यंग मर्चेंट, एक जवान व्यापारी है वेनिस में ही. शाइलॉक भी उसे हेट करता था. शाइलॉक टू हेटेड एंटोनियो बिकॉज क्यों? द लैटर यूज टू लेंड मनी. लैटर भी एक एडजेक्टिव है. लैटर मतलब एंटोनियो, अब यहाँ बाद वाला मतलब, क्योंकि जो वो है जो दूसरा आदमी है लैटर मतलब एंटोनियो. यहाँ पर दो आदमी की बात हो रही है, एंटोनियो और शाइलॉक. तो बिकॉज द लैटर यूज्ड टू लेंड मनी टू पीपल व्हेन दे वर इन ट्रबल. तो एंटोनियो भी कई बार मनी लेंड करता था, पीपल को उधार दे देता था मनी, लोगों को मनी उधार देता था, पैसे उधार देता था. और कब देता था? कि जब लोग वो मुसीबत में हो, दे वर इन ट्रबल, एंड वुड नेवर टेक एनी इंटरेस्ट. और उनसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता. फॉर जो वो मनी देता था, जो मनी उधार देता था, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता था. सो वी रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. Antonio was a kind man and was greatly loved by all his fellow citizens. His dearest friend Bassanio, who had nearly spent all his fortune by living in a very lavish manner, was often in need of money. Antonio assisted him every now and then. One day, Bassanio came to Antonio and told him that he wished to marry a lady whom he dearly loved and whose father had left her a large estate but not having money to furnish himself suitably to marry such a rich heiress. He approached Antonio to lend him 3,000 ducats. सो व्हाट वी सी ओवर हियर, एंटोनियो एक बहुत ही दयालु आदमी है और सभी उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको जानने वाले, उसके आसपास वाले सिटीजन्स. हिज डियरेस्ट फ्रेंड बसानियो, अब उसका जो प्यारा दोस्त है, हु हैड स्पेंट ऑल हिज फॉर्चून लिविंग बाय लैविश मैनर, बहुत अमीरी से जिया वो, पर उसको हमेशा पैसों की ज़रूरत पड़ जाती थी फिर भी. और एंटोनियो उसे हमेशा मदद करता था, हमेशा. एक दिन बेसोनियो जो था एंटोनियो के पास आता है और वो कहता है कि मुझे एक लड़की से शादी करनी है. आई वॉन्ट टू मैरी अ लेडी whom he dearly loved, उससे बहुत प्यार करता था वो. एंड whose father had left her a large estate, और उसके पिताजी ने, लड़की के पिताजी ने उसके लिए एक बहुत बड़ा बंगला छोड़ा है, बहुत बड़ा एस्टेट. बट नॉट हैविंग मनी टू फर्निश हिमसेल्फ suitably to marry such a rich heiress, पर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि उसको उस लड़की के सामने खुद को प्रस्तुत कर सके, क्योंकि वो बहुत ही अमीर है. ठीक है ना, बहुत ही अमीर पिताजी की वो पुत्री है, उनके पिताजी बहुत अमीर हैं, तो खुद भी बहुत अमीर हैं. तो उसके सामने जब वो खुद को प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो एंटोनियो से बोलता है मेरे को मदद चाहिए, आई वॉन्ट टू लेंड सम मनी. और वो बोलता है कितना मनी उसको चाहिए? 3,000 डुकैट्स. अब ये डुकैट्स क्या है? एक्चुअली जैसे अपने वी आर राइट नाउ ट्रेडिंग इन रुपीज़, ठीक है, तो वैसे ही जैसे इंडिया में रुपीज़ है या रुपया पहले था, तो 20th सेंचुरी में पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में ये डुकैट एक तरह का ट्रेड कॉइन था. सिल्वर के होते थे, कुछ गोल्ड के होते थे, और इससे ट्रेडिंग की जाती थी, इससे खरीदारी की जाती, लेन देन करी जाती थी. ठीक है ना. एंटोनियो हैड नो मनी विद हिम एट दैट टाइम. उसके पास उस समय बिल्कुल मनी था उसके फ्रेंड को लेंड करने के लिए. बट एक्सपेक्टिंग टू हैव सम चिप्स सम come home soon with his goods, he said he would go to Shylock and borrow the money upon the credit of those ships. Okay. अब वो कहता है कि उसको उम्मीद थी कि उसके कुछ शिप्स बाहर से सामान लेकर आ जाएंगी कुछ ही दिनों में, या जल्द ही, दिनों में भी नहीं लिखा, होम सून मतलब जल्द ही आ जाएंगी और उसमें सामान होगा. तो वो कहता है कि मैं शाइलॉक से, जो शाइलॉक जिसे वो पसंद भी नहीं करता था, वो कहता है कि मैं उससे उधार ले लेता हूँ, एंड बोरो द मनी, और उधार ले लेता हूँ ऑफ दो शिप्स. ठीक है ना, अपॉन द क्रेडिट ऑफ दो शिप्स. जब भी वो शिप्स आएंगे तो उसका सामान मैं उसको दे दूंगा और वो मेरा कर्जा चुकता हो जाएगा. एंटोनियो एंड बसोनियो वेंट टू शाइलॉक एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड देम 3,000 ducats. ओके, अपॉन एनी इंटरेस्ट ही शुड रिक्वायर टू बी पेड आउट ऑफ द गुड्स कंटेंट इन हिज शिप एट सी. तो बोलता कि तुम मेरे को पैसे 3,000 ducats उधार दे दो, जो भी इंटरेस्ट तुम्हें चाहिए वो लगा दो, और हम उसको जो हमारे पास गुड्स हमारे शिप में है उससे पे कर देंगे जैसी वो गुड्स आएगा. तो देखते हैं क्या होता है. Shylock said, Signor Antonio,
Very often you have railed at me, and I have borne it with a patient shrug. Well then, it now appears you need my help. Do you think I should lend you 3,000 ducats? Antonio replied, if you will lend me this money, lend it to me not as to a friend, but rather lend it to me as to an enemy. And then Shylock, pretending to be kind, said he would lend him the 3,000 ducats and take no interest for his money. Only Antonio should go with him to a lawyer and sign in merry sport a bond that if he did not repay the money by a certain day, he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased. ओके सो देखिए अब शाइलॉक की क्रूरता वो यहाँ बताता तो है, वैसा दिखाता तो है कि वो काइंड है, बट वो काइंडनेस यहाँ नहीं दिखाता. देखिए हुआ क्या, जब वो शाइलॉक के पास गए तब वो बोलता है सिग्नोर एंटोनियो. सिग्नोर क्या है, एक तरह का टाइटल है, जैसे हम मिस्टर लगाते हैं या सर बोलते हैं, तो वैसे सिग्नोर एंटोनियो. मिस्टर एंटोनियो, वेरी ऑफन यू हैव रेल्ड एट मी. सो रेल्ड मतलब कंप्लेंट बिटरली, मतलब बहुत एकदम से ईगरता से पूछना आना, फटाफट कुछ ऐसी कंप्लेंट लेके आना. तो बहुत कम आए हो तुम मेरे पास ऐसी कुछ कंप्लेंट लेके. एंड आई हैव बोर्न इट विद अ पेशेंट श्रग. और मैंने हमेशा बिल्कुल पेशेंटफुली, मतलब आराम से उस चीज़ को बियर करा है. बोर्न इट विद. ओके वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प. और बोलता है कि अब लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है. देखते हैं. डू यू थिंक आई शुड लेंड यू 3,000. बोलता है तुमको लगता है, तुमको क्या लगता है, मेरे को तुम्हें देना चाहिए उधार. तो एंटोनियो बोलता है मेरे को एक दोस्त की तरह नहीं, एक दुश्मन की तरह मेरे को उधार दो. ओके एंड देन शाइलॉक प्रिटेंडिंग टू बी काइंड. फिर शाइलॉक एकदम से बोलता है, ऐसा दिखाता है कि वो बिल्कुल नम्र है, बिल्कुल दयालु है. उसको बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा 3,000 दुकाट्स और तुमसे इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा. तो और बोलता है ओनली एंटोनियो शुड गो विद हिम टू अ लॉयर एंड साइन इन मेरी स्पोर्ट अ बॉन्ड. तो वहाँ पर वो एक बॉन्ड साइन कराएगा, वहाँ पर बॉन्ड साइन करना उसको मेरी स्पोर्ट के पास. तो दैट ही डिड नॉट रीपे. अगर उसने बॉन्ड में ये लिखा होगा, अगर उसने मनी नहीं पे करा तो ही वुड फोरफीट. फोरफीट माने सैक्रिफाइस अ पाउंड ऑफ फ्लेश, करीब 450 ग्राम का, मतलब उसका जो फ्लैश है, उसकी जो मांस है, वो बोलता है कि तुम्हें अपना एक कोई भी बॉडी का मांस काट के फेंकना पड़ेगा अगर तुम दे नहीं पाओ. ठीक है ना. तो अब वो कितना क्रूर है अपन को यहाँ देख सकता है. वो इस तरह की बॉन्ड साइन करवाने को बोलता है. अब देखते हैं क्या करता है एंटोनियो. एंटोनियो बोलता है आई विल साइन दिस बॉन्ड, सेड एंटोनियो. At last, against the advice of Bassanio, Antonio signed the bond. बसानियो से मना कर रहा होगा, क्योंकि कौन सा दोस्त होगा जो अपने दोस्त को मतलब मरने के लिए आगे भेज दे कि अगर पैसा नहीं दे पाया तो उसको बेचारे को हर बार 450 ग्राम उसका मांस देना पड़ेगा. सो द रिच heiress that Bassanio wished to marry lived near Venice at a place called Belmont. Her name was Portia. Bassanio now set out for Belmont, attended by another friend by the name of Gratiano. Bassanio was successful in winning the hand of Portia and confessed to her that he had no fortune. She, who loved him for his worthy qualities, answered, myself and what is mine is now yours. I give them with this ring. And she presented a ring to Bassanio. सो बेसानियो वहाँ पर पहुँचा और बेसानियो ने वहाँ उसका जो पोर्शिया थी वो अपने दोस्त के साथ गया था, ग्रेशियानियो के साथ. ठीक है ना. और पोर्शिया का जो है उसने दिल जीता. एंड उसका दिल जीतने के बाद उसने कन्फेस करा, उससे कन्फेस टू हर दैट ही हैड नो फॉर्च्यून. उसके पास कोई किस्मत नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है. और शी हु लव्ड हिम फॉर हिज वर्दी क्वालिटीज, उसकी क्वालिटीज के लिए उसको प्यार करा था. तो क्या बोलती है, उसको आंसर देती है मैं और जो कुछ मेरा है, माई सेल्फ एंड वॉट इज माइन, वो अब तुम्हारा है. आई गिव देम विद दिस रिंग. और वो इसको बचाने को एक रिंग गिफ्ट करती है. ओके नेक्स्ट.
Bassanio was so overpowered with the gratitude at her gracious manner that taking the ring, he vowed never to part with it. Gratiano and Nerissa, Portia's maid in waiting, took a liking to each other and wished to be married at the same time as Bassanio and Portia. अब क्या होता है, बेसानियो जो इतना मतलब खुद को शक्तिशाली महसूस करने लग जाता है उस क्यों, क्योंकि उसकी जो ग्रैटिट्यूड था, उसका जो ग्रेशियसनेस थी, उसकी जो नम्रता थी लड़की की, तो वो देखकर और उसके रिंग को देखकर वो एक कसम खाता है, ही वाउड टू नेवर पार्ट विद इट, कि उस रिंग के साथ कभी वो सौदा नहीं करेगा जो उसको पोर्शिया ने दी थी। और जो बेसानियो के साथ उसका दोस्त ग्रेटानियो और आता है, और नेरिसा जो पोर्शिया की मेड थी, वो लोग वेट कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। कौन? ग्रेटानियो और नेरिसा। ग्रेटानियो था बेसिनियो का दोस्त जो उसके साथ गया था बेलमोंट पोर्शिया के पास, और नेरिसा पोर्शिया की मेड जो कि नौकरानी थी। तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और इच्छा रखते हैं कि वो भी दोनों शादी कर लेंगे उसी समय जब बेसानियो और पोर्शिया करते हैं। Their happiness was turned to grave sorrow by a messenger who brought a letter from Antonio. When Bassanio read Antonio's letter, he turned pale. He, tend, he then told Portia of his borrowing the money from Antonio and of Antonio procuring it from Shylock, and of the bond by which Antonio had agreed to forfeit a pound of flesh if it was not repaid by a certain day. So हम देखते हैं कि अचानक से सबकी खुशियाँ अचानक से उसकी खुशियाँ, मतलब दोनों की खुशियाँ एकदम से एंटोनियो ग्रेटेनियो की वो एक गम में बदल गई। और क्यों? क्योंकि एक मैसेंजर, एक मैसेज पहुंचाने वाला ने एक उनको लेटर दिया जो कि एंटोनियो की तरफ से था, और जैसे ही बेसानियो ने लेटर पढ़ा वो पीला पड़ गया, ही टर्न्ड पेल। He then told Portia, उसने पोर्शिया को उसने सब बता दिया कि किस तरह उसने एंटोनियो से उधार लिया था उसका दिल जीतने के लिए, एंड एंटोनियो ने शाइलॉक से उधार लिया था, और उस बॉन्ड के बारे में जो एंटोनियो हैड अग्रीड टू फॉरफिट अ पाउंड ऑफ फ्लेश, वो मांस छोड़ेगा, मतलब इस तरह से उसने सैक्रिफाइस करा अपनी दोस्ती के लिए एंटोनियो ने। तो वो सारी चीज़ें उसने बता दी कि अगर एक पर्टिकुलर दिन के बाद अगर वो पैसा पे नहीं होता है तो एंटोनियो को मांस उसका खुद का देना पड़ेगा। और कितना? 1 पाउंड, 450 ग्राम। आप खुद सोचो कि हमारी उंगली कट जाती तो कितना दर्द होता है। ही अग्रीड टू गिव हिज होल फ्लेश, 450 grams of flesh. Okay, let us read what happens next. Bassanio then read Antonio's letter, the words of which were, तब उसने एंटोनियो का लेटर पढ़ा और उसमें क्या लिखा था हम देखते हैं। Sweet Bassanio, my ships are all lost, my bond to Shylock is forfeited, and since in paying it, it is impossible I should live, I wish to see you at my death. तो उस लेटर में लिखा था, प्यारे बेसेनियो, मेरी सारी शिप्स जो आने वाली थी जिसके बदले उसने उधार लिया था वो सब खो चुकी हैं, आर ऑल लॉस्ट। माई बॉन्ड टू शाइलॉक इज फोरफिटेड, मेरे जो बॉन्ड साइन करा था अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया, वो जा चुका है, अब मैं पे तो कर नहीं पाऊंगा, सिंस उसको पे करना इम्पॉसिबल है अब उसके लिए, क्योंकि पैसे ही नहीं है, ना कोई गुड्स आ रहा है। सो अब आई शुड लिव, उसने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल आई शुड लिव, मैं ये अब इम्पॉसिबल है कि मैं रहूं भी इस दुनिया में, क्योंकि मांस हर बार देना कितना दुखदायक होगा और वो आखिरकार मर ही जाना है उसको। सो आई विश टू सी यू एट माई डेथ, वो बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि तुम मेरी मौत पे ज़रूर आओगे। पोर्शिया देन सेड she would be married to Bassanio before he set out to give him a legal right to her money, and that same day they were married. And Gretanio was also married to Nerissa. Bassanio and Gretanio set out in great haste for Venice, where Bassanio found Antonio in prison. तो पोर्शिया ने उसको बेसानियो को बोला कि तुम अगर मेरे लीगल राइट, मेरे जितने भी मेरे पास पैसा है जो भी है, तुम भी उसके हकदार बन जाओगे, मुझसे आज ही शादी कर लो। और उसी समय बेसानियो शादी कर लेता है पोर्शिया से, और वहीं पर जो ग्रेटेनियो है उसका दोस्त, वो भी शादी कर लेता है पोर्शिया की बेट से, नरिसा से, सॉरी।
So Bassanio and Gratinio उसके बाद set out in a great haste for Venice. Haste means बहुत एक्सप्रेसिव स्पीड, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में वो लोग वेनिस पहुंचे. Where Bassanio found Antonio in prison, और जहाँ बेसोनियो ने एंटोनियो को जेल में पाया. Shylock refused to accept money that Bassanio offered, and Day was set to try this shocking case before the Duke of Venice. अब बेसोनियो के पास जो अब पैसा था तो उसने शाइलॉक को दिया कि भाई उसके दोस्त को छुड़ा ले, बट शाइलॉक ने क्या करा, शाइलॉक रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी. उसने मना कर दिया, मैं बेसोनियो से एक्सेप्ट नहीं करूंगा. और and a day was set to try this shocking case before Duke of Venice. जो शासक थे उनके सामने ये केस ले जाया गया, उनके सामने ये किस्सा ले जाया गया. Portia meanwhile began to think if she could by any means try to save the life of Bassanio's dear friend, and at once resolved to go herself to Venice and speak in Antonio's defense. So जो पोर्शिया थी, पोर्शिया डिसाइड करती है कि उसके दोस्त के बहुत डियर फ्रेंड को वो बचा सकती है, तो उसको एक बार कोशिश करनी चाहिए. और वो फिर सीधा वेनिस के लिए जाने का डिसाइड करती है, रिजॉल्व टू गो टू वेनिस, और खुद ही एंटोनियो के डिफेंस में लड़ने के लिए खड़ी होने का फैसला लेती है. एंड स्पीक इन एंटोनियोस डिफेंस. पोर्शिया हैड अ रिलेशन नेम्ड बेलारियो who was a counselor in the law. She wrote to him, and when the messenger returned, he brought letters of advice from Bellario about how to handle the case. तो पोर्शिया के कुछ रिलेशन थे एक बेलारियो नामक आदमी से, जो कि काउंसलर था लॉ का वहाँ का. तो वो उसको सारी चीज़ों के बारे में बताता है, और वो एक लेटर लिख के भेजता है, और उस लेटर में एडवाइस होती है जिसमें बेलारियो बताता है कि इस केस को किस तरह से हैंडल करना है, इस केस को किस तरह से लड़ना है. ठीक है. नेक्स्ट, Portia dressed herself and her maid Nerissa in men's clothes, and setting out immediately, they arrived in Venice on the very day of the trial. The case was just going to be heard in the Senate House when Portia entered and presented a letter from Bellario. The learned counselor wrote to the Duke saying he was sick and requested that the learned young doctor Balthasar, so he called Portia, might be permitted to take his place. This the Duke granted, though he was quite surprised at the youthful appearance of the stranger. So यहाँ पोर्शिया ने खुद को और नेरेसा को एक आदमियों के कपड़ों में ड्रेसअप कर लिया, और इमीडिएटली वो लोग वेनिस के लिए निकल गए, और उसी समय उसी दिन वेनिस पहुंच गए ट्रायल से, जिस दिन उसका ट्रायल था एंटोनियो का. ट्रायल मतलब जब केस में पेशी जैसा कहते हैं हम लोग आज के केस में. सो द केस वॉज जस्ट गोइंग टू बी, केस शुरू ही होने वाला था. कोर्ट के अंदर, कोर्ट एक सेनेट हाउस इज अ टाइप ऑफ कोर्ट, वहाँ के लिए कोर्ट होगा. सो व्हेन पोर्शिया एंटर्ड एंड प्रेजेंटेड, और जैसे ही शुरू होने वाला था, पोर्शिया ने एक लेटर दिया जो बेलारियो ने उसको दिया था, और जो काउंसलर थे वहाँ पर, उन्होंने वो लेटर आगे वहाँ के शासक के सामने, जिसके सामने वहाँ वो केस जाने वाला था, तो उसके सामने उनको दे दिया, जिसके सामने सारा केस लड़ने वाले. तो जो शासक थे वहाँ के, उनको ड्यूक मतलब शासक, तो उसको लेटर दे दिया. ही गिवन द लेटर टू द ड्यूक. सो सेइंग, उस लेटर में लिखा था सेइंग ही वाज सिक. उस लेटर में लिखा था जो लड़ने वाला, जो केस को लड़ने वाला था, वो बीमार है, और रिक्वेस्ट करा कि जो एक यंग डॉक्टर उन्होंने बालतसर को भेजा है, वो उनकी तरफ से केस लड़े. बालतसर पोर्शिया थी. पोर्शिया जो आदमी के रूप में ड्रेस हो गई थी, वो खुद बाल्थसर बन के आई थी, डॉक्टर बाल्थसर, कि वो अब एंटोनियो का केस लड़ेगी, क्योंकि उनका वकील बीमार है, तो उनके एब्सेंस में ये पोर्शिया जो कि डॉक्टर बाल्थसर है, वो केस लड़ेंगे. सो ड्यूक ने परमिशन ग्रांट कर दी. ड्यूक ने कहा ठीक है, पर वो थोड़ा सा चकित था, जो ये यंग स्ट्रेंजर थे बाल्थसर, डॉक्टर बाल्थसर, इनकी यूथफुलनेस को देखकर, इनकी बहुत ही मतलब यंग अपीयरेंस को देखकर, इतने जवान अपीयरेंस को देखकर. एंड नाउ बिगैन दिस इंपॉर्टेंट ट्रायल. Portia looked around her, and she knew the merciless moneylender, and she saw Bassanio, but he knew her not in her disguise.
यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रायल शुरू हो चुका है। पोर्शिया ने चारों तरफ देखा और उसने पाया कि उसने उस मनी लेंडर को देख के पहचान लिया कि वो जो मर्सिलेस मनी लेंडर था उसको पहचान लिया। मनी लेंडर कौन था? मनी लेंडर शाइलॉक। तो शाइलॉक जो था उसको पहचान लिया एंड शी सॉ बेसानियो। उसने अपने पति बेसानियो को भी देखा, बट बेसानियो ने उसको पहचाना नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्गाइज में थी। वो एक डिस्गाइज मतलब आदमी के भेष में थी। The importance of the arduous task that Portia had taken up gave her the courage she needed. So arduous task मतलब एक ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, तो उसको डिफिकल्ट टास्क ऐसा मिला था और जिसने उसको हिम्मत दी कि वो कर सकती है। First of all, she addressed herself to Shylock and spoke so sweetly of the noble quality of mercy that would have softened any other heart but the unfeeling Shylock's. She said that it was a double blessing. It blessed the person who was merciful and the person who received it. Shylock only answered her by desiring to have the penalty forfeited in the bond. तो शाइलॉक ने उसको ऐसा आंसर मतलब जब भी आंसर दिया कि भाई एक तरह से उसकी जो पेनल्टी थी जो उसने बॉन्ड में लिखी थी, जो उसने 1 पाउंड मास्क के लिए लिखा था, उसके 1 पाउंड फ्लैश के लिए, वो फोरफीट मतलब उसको मिल जाए। इज ही नॉट एबल टू पे द मनी? आस्क्ड पोर्शिया। पोर्शिया ने उसको ये पूछा। बेसानियो देन ऑफर्ड द ज्यू द पेमेंट ऑफ द 3000 ducats as many times over as he wanted. तो हाथों हाथ बेसानियो ने उसमें बोला कि मैं 3000 पाउंड्स दे दूंगा और इवन जितना इंटरेस्ट भी इसको चाहिए। When Shylock did not want the money, Portia gravely answered that laws once established must never be altered. तो पोर्शिया बोलती है जो लॉ बन चुके हैं उसको वापस हमें बदलना नहीं चाहिए, never be altered. Shylock, hearing Portia say that the law cannot be changed, said, "A Daniel is come to judgment. O wise young judge, how do I honor you? How much elder are you than your looks?" तो यहाँ वो बोलता है कि मतलब उसकी तो एक तरह से जैसे शाइलॉक एकदम से खुश हो जाता है और एकदम से चौंक जाता है और वो एकदम बोलता है देखो एक डैनियल आया है। डैनियल बहुत ही वाइज आदमी था हिस्ट्री में। सो डैनियल आया है जजमेंट के लिए, जजमेंट देने के लिए। ओ वाइज यंग जज बोलता है, ओ समझदार यंग जज, हाउ टू ऑनर यू, कैसे मैं तुम्हारा सम्मान करूं? तुम तो वाकई समझदार दिखते हो, तुम्हारी लुक्स जैसे है उसके अनुसार तुम बड़े दिखते, तुम्हारी सोच बड़ी है। हाउ मच एल्डर आर यू देन लुक्स, तुम्हारे लुक्स के अनुसार तुम्हारी समझ नहीं है। सो आगे पढ़ते हैं। Portia now wanted to look at the bond, and when she had read it, she said, "By this bond, the moneylender can lawfully claim a pound of flesh to be cut off nearest Antonio's heart." Shylock now started sharpening a long knife. तो अब वो यहाँ पर जो है उसको बोलती है पोर्शिया, सेनेट को, वहाँ के जो शासक थे उनको बोलती है, ड्यूक को, कि इस जो बॉन्ड है इसके अनुसार जो शाइलॉक है वो लॉफुली 1 पाउंड फ्लैश काट सकता है, 1 पाउंड मांस काट सकता है। कहाँ से? नियरेस्ट एंटोनियोज हार्ट, उसके एंटोनियो के दिल के नज़दीक से वो 1 पाउंड आराम से काट सकता है। तो अब शाइलॉक ये सुन के अपने चाकू को शार्प करने लग गया। लुकिंग ईगरली टूवर्ड्स एंटोनियो, शाइलॉक सेड, "कम, आर यू रेडी?" और वो एंटोनियो की तरफ एकदम देख के बोलता है, क्या तुम तैयार हो? चाकू लेके वो बोलता है, क्या तुम तैयार हो? सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। वेट अ लिटिल, सेड पोर्शिया। रुको 1 मिनट, देयर इज समथिंग एल्स। यहाँ और भी कुछ है। दिस बॉन्ड हियर गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड। द वर्ड्स expressly are a pound of flesh. If in cutting off the pound of flesh you shed 1 drop of blood, your lands and goods will by the law belong to the state of Venice. Now, as it was utterly impossible for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding some of Antonio's blood, this wise discovery of Portia's that it was flesh and not blood that was named in the bond saved the life of Antonio. And Gratanio exclaimed,
ओ वाइज एंड अपराइट जज। तो अब यहाँ इसने क्या करा, उसने एकदम से बोला रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, यहाँ पर एक और चीज भी, इस बॉन्ड में तो यही लिखा है कि आपने बोला है सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश निकालोगे, पर अगर एक बूंद भी खून निकला तो जितना आपका पास प्रॉपर्टीज हैं, जितने आपके पास मनी है, एवरीथिंग वुड गो टू वेनिस। ओके, सो स्टेट ऑफ वेनिस के पास चली जाएगी। सो उसने कहा ये आपके लिए गलत हो जाएगा अगर उसका एक बूंद भी ब्लड गिरा तो। और ये तो इम्पॉसिबल था कि अगर उसको उसका मांस काटना था चाकू से तो वो एक ड्रॉप ब्लड का नहीं गिरता। और इसी तरह एंटोनियो जो था वो बच गया और उसकी लाइफ बच गई। और इसी वक्त जो ग्रेटियानियो था, बेसानियो का दोस्त, वो एकदम से चिल्ला उठा, ओ वाइज, खुशी में, ओ वाइज एंड अपराइट जज। Shylock, finding himself defeated, said that he would take the money, and Bassanio, rejoicing at Antonio's unexpected deliverance, cried out, "Here is the money!" But Portia stopped him, saying, "By the laws of Venice, your wealth is forfeited to the state for having conspired against the life of one of its citizens, and your life lies at the mercy of the Duke." The Duke then said to Shylock, I grant you your life before you ask it. Half your wealth belongs to Antonio, and other half comes to the state." तो अब क्या होता है देखिए, शाइलॉक एकदम से हारा हुआ महसूस करता है और बोलता है कि चलो वो जो बेसोनियो पैसे दे रहा था उससे मैं पैसे ले लेता हूँ। वो बोलता है ही वुड टेक द मनी, ही वुड टेक द मनी, ही गेट रेडी। और बेसोनियो खुशी मना रहा होता है कि एंटोनियो बच गया, उसका बहुत ही प्यारा दोस्त बच चुका, तो वो पैसे दे देता है, देने जा रहा होता है। और जैसे ही वो पैसे देने जा रहा होता है बोलता है हियर इज योर मनी, हियर इज द मनी। तो पोर्शिया क्या करती है, बट पोर्शिया स्टॉप्ड हिम, और वो कहती है कि बाय द लॉज ऑफ वेनिस, वेनिस का एक लॉ था कि योर वेल्थ इज फोरफीटेड टू द स्टेट for having conspired against the life of one of its citizen, कि उसने ऐसी षड्यंत्र रचा कि उसकी किसी एक सिटीजन की जिंदगी के साथ उसने खिलवाड़ करा। तो वहाँ पर एक वेनिस का लॉ था कि कोई भी सिटीजन अगर दूसरे सिटीजन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसकी जो जिंदगी थी वो शासक के हाथ में, ड्यूक के हाथ में थी। योर लाइफ लाइज एट द मर्सी ऑफ ड्यूक। अब ड्यूक एकदम से शाइलॉक की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी देता हूँ, आई ग्रांट यू योर लाइफ बिफोर यू आस्क इट, उससे पहले कि तुम अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगो मैं तुम्हें देता हूँ हाफ। अब उसके आगे वो बोलता है तुम्हारी आधी धन दौलत नाउ बिलोंग्स टू एंटोनियो एंड आधी हमारी टू द स्टेट। सो the generous Antonio then said that he would give up his share of Shylock's wealth if Shylock would sign a deed to hand it over at his death to his daughter and her husband. तो यहाँ पर भी एंटोनियो जो बहुत ही नम्र था वो बोलता है कि मैं छोड़ दूंगा, मेरे को शाइलॉक की वेल्थ नहीं चाहिए, मेरे को वो आधी दौलत भी नहीं चाहिए। वो बोलता है क्यों, कब, if he would give his share of Shylock's wealth if Shylock would sign a deed। अगर अब वो बोलता है अब शाइलॉक जो है वो अगर साइन करे एक डीड या एक बॉन्ड कि वो अपनी जायदाद जो है वो आधी जायदाद हैंड इट ओवर टू हिज डेथ एट हिज डेथ टू हिज डॉटर, वो अपनी बेटी को दे दे और उसके हस्बैंड को दे दे, अपनी जो दौलत जितनी भी वो कमाता है अपनी बेटी और अपने उसके हस्बैंड को दे दे उसकी मौत पर, जब वो मर जाए तब उसकी दौलत उसकी बेटी की हो जाए, ऐसी उसने बॉन्ड साइन कराने के लिए बोला। तो द ड्यूक now realized Antonio and dismissed the court, now released the Antonio and dismissed the court। तो now जो शासक होता है वो छोड़ देता है एंटोनियो को और डिसमिस कर देता है कोर्ट को। The Duke and his senators left the court and Bassanio and Antonio asked Portia to accept the 3,000 ducats for her help and skillful handling of the case. But Portia would not accept the money but asked for the ring which she had given Bassanio and which was upon his finger. Bassanio was sorrow-stricken that the counselor should ask him for the only thing he could not part, but he had to part with it। अब यहाँ पर पोर्शिया जो है वो जो डॉक्टर बैलेट्सर बन के आई हुई है वो बोलते कि बसानियो बोलता है कि तुम ये 3,000 डुकाट्स ले लो और तुमने बहुत अच्छा केस लड़ा, ये आपकी फीस समझ के ले लो। तो बट वो मना कर देती है, जो डॉक्टर बैलेट्सर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम मुझको तो अब मेरी फीस के रूप में ये रिंग चाहिए।
पर बेसानियो की जो रिंग होती है वो तो पोर्शिया ने दी हुई होती है, पोर्शिया ने बोला था इसकी कभी पार्ट मत करना, कभी बेचना मत, कभी कुछ मत करना इस पे। और बेसानियो बहुत ज़्यादा गम में चला जाता एंड वो सोचता है कि मैं अब कैसे दूँ, ये एक ही चीज़ है जिसको मैं दे नहीं सकता। एंड देन द क्लर्क नेरिसा who had also given Gratiano a ring begged for his ring and Grattanio gave it to her। तो इसी तरह नेरिसा ने भी एक रिंग दी होती ग्रेटानियो को, जो नेरिसा थी उसकी मेड पोर्शिया की, उसने भी ग्रेटानियो को एक रिंग दी थी, दोनों ने शादी एक साथ करी थी तो दोनों ने एक जैसे रिंग दी, तो वो ग्रेटानियो को भी बोलती कि तुम भी मेरे को रिंग दे दो। अब ये दोनों तो भेष में थे आदमी के, डॉक्टर बैलेसर और उसके साथ ही, तो दे वर नॉट रिकॉग्नाइजिंग देम। और उसी समय ग्रेटानियो क्या करता है, वो अपनी रिंग दे देता है, बट अभी तक बेसानियो ने नहीं दी है। देयर वाज अ स्क्वबल when the husbands reached home, but then Portia narrated how she had come to be Balthazar and Nerissa her clerk. All was now well, particularly as Antonio received news of the safe return of his ships। और यहाँ पर बहुत बड़ा एक मुठभेड़ जैसी हो जाती है, एक बहुत बड़ी बहस होती है जब सब लोग घर पहुँचते हैं और जब मालूम पड़ता है कि नाव बैलेट्सर, जो डॉक्टर बैलेट्सर थे वो पोर्शिया थी और नेरिसा उनकी क्लर्क बन के आई थी। और उसी बहस के साथ ही ये यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है और वहाँ पर सब कुछ सही हो जाता है, ऑल वाज नाउ वेल। और पर्टिकुलरली एंटोनियो की जो शिप्स गुम गई थी वो भी वापस मिल जाती हैं और सब कुछ फिर से सही हो जाता है। तो ये कहानी थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक वेनिस के व्यापारी की, जो कि एंटोनियो था। So this was your story of the Merchant of Venice. So now, as is the time of assignment, what we have in our sleeves then? Exercise A and B on page number 21, exercise C and D on page number 22. So this is your online classwork. Actually it is your self work, it is the part of your self work. First I will give you the answers. I have done it in a miscorrect manner, so I have done it again for you. This is your self work, exercise A and B on page number 21 and exercise C and D on page number 22। ये आपको अपने आप करना है। अब आप स्टोरी को समझ चुके हैं। इफ़ यू वांट टू रीड द स्टोरी वन मोर टाइम, आप इस लेक्चर को वापस सुन सकते हैं एंड यू कैन रीड द स्टोरी वन मोर टाइम। एंड जो आपकी नई बुक्स हैं जिसमें ये पेज नंबर 21, अगर आप बुक्स नहीं डाउनलोड कर सकते तो आपके क्वेश्चंस ये रहे, आप यहाँ वीडियो पॉज करके यू जॉट डाउन द क्वेश्चन एंड डू योर आंसर्स इन योर कॉपी। प्लीज़ नोट इट डाउन, आपको ये करना है और मुझे भेजना है बाय द एंड ऑफ द डे। So this was the story, The Merchant of Venice, and now this would be the end of the session, of this session, and I would thank you all जो आप बैठकर you have eagerly seen the lecture। Please subscribe if you have not subscribed। सेव योर प्लेलिस्ट, जो आपकी क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको सेव कर लो अपनी प्लेलिस्ट के साथ। और जो बुक अगर आपको चाहिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, उसका लिंक वी हैव गिवन इन यू in the description below। Okay, so you can just go to the description down and just click on the button, you will directly download the book। And if you want to go to OCW, that is online study material, OSM sorry, so you can directly click on that also। I have given both the links in the description below। Thank you and have a very nice day।